ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں ڈیجیٹل مہارت اور کیش لیس ادائیگی کے نظام میں توسیع شعبے کی ترقی کا باعث۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کے وفد سے گفتگو۔ اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل روابط پر غور۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں ایرکسن کی سرمایہ کاری اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں کردار کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کا بحرین کا سرکاری دورہ۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ دورہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا باعث بنے گا۔ علاقائی معاملات کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور میانمار کے وزیر خارجہ یوتھان سوئی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون میں پیش رفت۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشت دونوں ملکوں کی دیرینہ دوستی کی عکاس۔ یادداشت پر دستخط وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے مراکش کے سرکاری دورے کے موقع پر ہوئے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدہ۔ مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان ہی میں مکمل کی جائے گی۔ پائلٹ منصوبے کا آغاز کراچی سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز و پورٹ سیکیورٹی احمد بن الحج الفلاسی کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات۔ مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کاشتکاروں کی دہلیز پر زرعی خدمات پہنچانے کا عزم۔ کاشتکاروں کی آسانی کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویلز قائم۔ کاشتکار مٹی اور پانی کی تجزیاتی رپورٹ فوری حاصل کر سکیں گے۔ کاشتکاروں کی بہبود کے لیے کسان کارڈ، ٹریکٹر سمیت درجنوں پروجیکٹس پر عمل درآمد جاری۔ مریم نواز۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا پاکستان افغانستان بین الاقوامی سرحد کے گمراہ کن بیانیے پر سخت رد عمل۔ گمراہ کن پروپیگنڈا یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثہ جات کے منظم فریم ورک کی تیاری۔ پاکستان کرپٹو کونسل اور ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی پر پیش رفت۔ ڈیجیٹل اثاثہ سرگرمی کو محفوظ اور شفاف بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ۔ بینکوں کے ذریعے ڈیجیٹل اثاثہ جات خدمات کی فراہمی پر غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آئیکن ٹیکنالوجی کے وفد سے گفتگو۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری۔ 100 انڈیکس میں 1567 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس میں 1,83,951 پر بند۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات۔ فتنۃ الخوارج، کالعدم ٹی ٹی پی اور ڈی ٹی اے کے تناظر میں داخلی سلامتی پر جامع گفتگو۔ اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔
जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के कॉन्वोकेशन से खिताब। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज। क्लाइमेट फाइनेंसिंग नागुज़ीर। हुकूमत मौसमियाती मुताबिकत के हामिल मंसूबों पर अमल पैरा है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में होता है। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा इंतहाई मामूली है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में दरख्तों के काटने पर बेजा तनकीद की गई। पोलन एनर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जंगलात के माहिरीन पर एक कमेटी बनाई। शजरकारी मुहिम के दौरान मजीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। फैसले पॉलिसी के तहत होते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान के मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने की हुकूमती हिकमत अमली। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मजमून में पाकिस्तान के मादनी शोबे की इस्लाहात का तफसीली अहाता। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जह किया जा रहा है। अप्रैल में शेड्यूल फोरम का मकसद पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए तैयार माइनिंग मईशत के तौर पर पेश करना है। द नेशनल इंटरेस्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रियासत से सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मांगना मज़हक़ खेज़ है। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI ने कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की। कारकुनों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े। PTI क़यादत का रवैया इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सिंध हुकूमत ने PTI की शरपसंदी के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आला को प्रोटोकॉल और इज्जत दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय हुकूमत यासीन मलिक पर शदीद तशद्दुद कर रही है। यासीन मलिक की जद्दोजहद आज़ादी को आगे बढ़ाएंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर में लाखों कश्मीरी कुर्बानी दे चुके हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मशाल मलिक का रावलपिंडी में रैली से खिताब। बदला खुद एक ताकत। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। तारीख हमें चैलेंज करती है और हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। भारत के कौमी सलामती के मुशीर का इंतकाम के हवाले से शर्मनाक बयान। अपोजिशन समेत सिविल सोसाइटी की मजम्मत। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि दोवल ने नफरत और फिरकावाराना इश्तियाल अंगेज़ी को मामूल बना लिया है। महबूबा मुफ्ती। माहिरीन के मुताबिक अजीत दोवल का अक़लियतों के खिलाफ गुस्सा और नफरत अंगेज़ बयानिया उनकी जहनी पस्ती की अक्कासी करता है। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। बड़ी तादाद में काबिज फौजियों की तैनाती। रात को फोर्सेस के गश्त से मकामी आबादी को शदीद खौफ और दहशत का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की हालत इज़ार का फौरी नोटिस ले। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय काबिज इंतजामिया की मसाजिद और इमाम साहिबान का डाटा इकट्ठा करने की मुहिम। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मजीद 5 कश्मीरी मुलाजमीन बरतरफ। और तेहरान में ईरानी हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहरा।
आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरों पर कौम को खराज तहसीन। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिलाकर तारीख रकम कर दी। कौम ने अपने अज़्म और शनाख्त का भरपूर इजहार किया। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का सरकारी टेलीविजन पर खिताब। चीन और तुर्की का ईरान में मुमकिना गैर मुल्की मुदाखलत पर गहरी तशवीश का इजहार। चीन किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। उम्मीद है ईरान में बहरानी सूरत हाल पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा। ईरान में बैरूनी मुदाखलत से मशरिक वस्ता में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। तुर्की ईरान में किसी भी बैरूनी मुदाखलत का हामी नहीं। ऐसे हालात में सिफारतकारी और मुकालमे के जरिए मसाइल के हल की जरूरत है। तर्जुमान हुकूमती पार्टी। अमरीकी सदर का ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जरूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात। बांग्लादेश अपनी टीम भारत न भेजने के मौकिफ पर डट गई। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। आईसीसी की बीसीबी को अपने मौकिफ पर नजरसानी की दरखास्त। अपनी टीम भारत नहीं भेज सकते। आईसीसी हमारे मैचेस भारत से बाहर मुनक्किद करे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और भारत एक मर्तबा फिर खेलों में सियासत घसीट लाया। पाकिस्तानी पस मंजर की वजह से अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स का T20 वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा मुस्तरद। अमेरिकी क्रिकेटर अली खान का वीज़ा मुस्तरद होने का सोशल मीडिया पर ऐलान। दीगर क्रिकेटर्स को भी इसी नौइयत की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। भारत के खिलाफ सीरीज के बाद तमाम फॉर्मेट से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगी। 8 आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल्स का हिस्सा रही। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की अहलिया हैं। Wait till Harps comes out to bat. It's struck straight to the fielder. Out as well, so the pressure's starting to mount. That's well and truly worth the shout. Gets him! Choppers. और बिग बैश क्रिकेट लीग मेलबर्न स्टार्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्ट्राइकर्स 19.3 ओवर्स में 83 रन पर आउट। स्टार्स ने हदफ 15.1 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। बिग बैश लीग देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Straight up in the air. It is a free hit though. And just with that... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। दुरुस्त,
हर वक्त बर वक्त। और खबरनामे की पहली अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वक्त ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में डिजिटल महारतों की तरक्की, माली शमूलियत और कैशलेस अदायगी के निज़ाम की तौसीह के साथ कुदरती आफात से निपटने और इदारा जाती तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। एरिक्सन कंपनी के सदर पैट्रिक जोहानसन की क़यादत में वफ़द ने इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फ़राहमी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में एरिक्सन की 6 दहाइयों पर मुहित सरमायाकारी और टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स पर एरिक्सन के आलमी तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। उन्होंने कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़म का यादा किया। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकत दारों की हिमायत के लिए हुकूमती अज़म को दोहराया। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समेत IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना हमजहत बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। तफसील जानते हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास से। दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत का ये दौरा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ समेत दोनों ममालिक की रिवायती गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने, शराकत दारी के नए इम्कानात तलाश करने और अवामी सतह पर रवाबित को गहरा करने में मुआविन साबित होगा। We are working with Bahrain to work closely with Gulf to enhance bilateral cooperation between Pakistan and GCC. The President of Pakistan's visit to Bahrain is a key initiative to build on this relationship further. And the President of Pakistan was here before in his capacity as President in 2011, and this will be his second visit. During his first visit also, he established very close personal relationships with the Bahraini leadership, and his presence here is going to give boost to our bilateral relationship with Bahrain. 1 लाख से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी बहरीन की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने 1971 में बहरीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बढ़ाए। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा युथॉन सोए के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई मामलात पर पुरअमन अंदाज में बातचीत से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर के हवाले से करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मुल्क में गंदम के ज़खायर के हवाले से इजलास की सदारत की। उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें ज़रूरत के मुताबिक सूबों को जारी किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और गंदम की बरवक्त तक़सीम यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मराकश का सरकारी दौरा है और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और मराकश ने दिफ़ाई ताउन के हवाले से मुफ़ाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक अहम संग मील है। वज़ीर दिफा ने मराकश की नेशनल डिफेंस इंतजामिया के सरबराह हुकूमत के मंदूब अब्दुल लतीफ़ लोधी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर बातचीत की गई। वज़ीर दिफा ने मराकश के उमूर खारजा और अफ्रीकी ताउन के वज़ीर नासिर बोरीता और मराकश के तारिकीन वतन से भी मुलाकातें की। इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मोहम्मद पंजम के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब पर दस्तखत किए। वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान और मराकश के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाहज अल फलासी की सरबराही में
मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदे पर भी इत्तेफाक किया गया। इस पायलट मनसूबे का आगाज़ कराची से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचने पर इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। इस इकदाम से सफ़र में सहूलत और वक्त की बचत होगी। यूएई वफ़द ने इस इकदाम पर दोनों मुल्कों के अवाम के लिए मुफीद करार देते हुए हर तरह के ताउन के आज़म का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई तरक्की के लिए 15 अजला में एग्रीकल्चर मोबाइल लैब्स कायम करने का ऐलान किया है, जो काश्तकारों को उनकी दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रई मशवरे फराहम करेगी। मोबाइल लैब्स की मदद से काश्तकार मिट्टी और पानी के नमूनों का फौरी तज्जिया कर सकेंगे और फसलों की ज़रखेज़ी का दुरुस्त तयन मुमकिन होगा। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मुकम्मल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और इसके अलावा पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे, जिनमें डाटा कॉल सेंटर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और जदीद डिजिटल आलात दस्तियाब होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इक़दाम किसानों की सहूलत और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के लिए अहम है। वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पाक अफ़गान बैन अक़वामी सरहद के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैन अल-अक़वामी सरहद को बैन अल-अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुहेल खान आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1567 पॉइंट के इजाफे के बाद 1,83,951 पर बंद। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। हुकूमत की बेहतर इक्तिसादी पॉलिसीज की वजह से मुल्क के मुआशी आशारिये मुस्तहकम होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए रिकॉर्ड तरसीलात भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक्सपोर्ट्स में इजाफे के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हो रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद स्टेट बैंक की जानिब से आने वाली ज़र पॉलिसी में मजीद कमी मुतवक्के है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी रह सकता है। देख रहे हैं कि जो मार्केट बढ़ रही है, लेवरेज पोजीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 17 अरब रुपए की लेवरेज पोजीशन से इस वक्त सरमायाकारों की नए सरमायाकार कंटिन्यू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। लिक्विडिटी भी आ रही है, जिसके बायस मार्केट कंटिन्यू नए हाईज बना रही थी। आने वाले दिनों में जैसा हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है, खासतौर पर डिफेंस साइड के ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट शो की है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि अगले 4 साल में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ा के 60 अरब डॉलर के करीब लेकर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपने टारगेट तो सेट कर दिए हैं, मईशत में मुश्किल फैसले भी ले रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन भी आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। आज मजमूई तौर पर 562 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 177 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 265 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 120 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 62 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत के 4,93,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 3 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और ऑयल एंड गैस की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, पाकिस्तान के खरबों डॉलर मालियत के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने की हुकूमती हिकमत अमली वाज़ेह हो गई। द नेशनल इंटरेस्ट में शाये मजमून में पाकिस्तान के मादनी शोबे की इस्लाहात का तफसीली अहाता किया गया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जा किया जा रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अप्रैल में शेड्यूल फोरम का मकसद पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए तैयार माइनिंग मईशत के तौर पर पेश करना है। रेकॉर्डिक दुनिया के बड़े कॉपर और गोल्ड मंसूबों में शामिल है, जहां 5.9 अरब टन मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की मजमूई मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर्स है। कीमती पत्थरों की सालाना बरामदात सिर्फ 5.8 मिलियन डॉलर है। मजमून के मुताबिक हुकूमत ने कीमती पत्थरों के लिए पहली कौमी जेमस्टोन्स पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। जेमस्टोन्स पॉलिसी के तहत जदीद सर्टिफिकेशन, वैल्यू एडिशन और नौजवानों की कारोबारी शमूलियत पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने 5 साल में जेमस्टोन्स बरामदात 1 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। पाकिस्तान लिथियम, कोबाल्ट और नायाब ज़मीनी अनासिर में आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की सलाहियत रखता है। मादनी इस्लाहात से
टेक्नोलॉजी मुंतकिली और सनती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। रियाज में होने वाले फ्यूचर मिनरल्स फोरम के मौके पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सऊदी अरब के वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खुरैब से मुलाकात हुई, जिसमें मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वजीर ने कहा कि सऊदी अरब अपनी इल्मी और तकनीकी महारत के जरिए पाकिस्तान के मादनी शोबे की तरक्की में मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान का एथियन बेल्ट बेपनाह मादनी सलाहियत रखता है और रेकोडिक इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मिलकर मुश्तरका तहकीक और डाटा शेयरिंग पर काम कर रहा है। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की क़यादत को सराहते हुए कहा कि फोरम में पाकिस्तान की शिरकत दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ। ECC ने पंजाब में पायदार तरक्की के हवाले से मुख्तस अहदाफ के हसूल के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर की, जबकि दिफाई खिदमात के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। ECC ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के लिए 32 करोड़ 28 लाख 70,000 रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर की, जिसके तहत इस्लामाबाद में कायम होने वाले ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ज़ेर तालीम खुसूसी बच्चों की आमदोरफ्त के लिए 15 बसें फराहम की जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन डिवीज़न की समरी पर ECC ने इस्लामाबाद में आवाम दोस्त आसान खिदमत मरकज़ के क़याम के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इजलास में वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से फिल्म और ड्रामा फाइनेंस फंड के लिए 1 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की दरख्वास्त पर गौर किया गया। ECC ने 70 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि वजारत 6 माह बाद फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे ताकि शफाफ और मुसाबकती अंदाज में मयारी मवाद की तैयारी मुमकिन हो सके। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी सतह पर डिजिटल असासजाती सरगर्मियों में पाकिस्तान की बढ़ती हुई शमूलियत के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इस्लामाबाद में आईकॉन टेक्नोलॉजी के वफ़द से मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और पाकिस्तान वर्चुअल असासजात रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम इस जानिब अहम कदम है। वफ़द ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्टेबल कॉइन्स की सलाहियत को उजागर करते हुए पाकिस्तान में मकामी शराकतदारों के साथ सरमायाकारी के लिए मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल वाटर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ। इजलास में आबी चैलेंजेस, ग्लेशियर्स के तेज़ रफ्तार पिघलाव, मौसमियाती तब्दीली के असरात और कौमी सतह पर वाटर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस 1960 से अब तक ग्लेशियर्स की 23% बर्फ पिघल कर ज़ाया हो चुकी है। उन्होंने खबरदार किया कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान को पानी के एक संगीन बहरान का सामना होने का खदशा है। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मअतली भी खित्ते के अमन और पाकिस्तान के आबी हुकूक के लिए संगीन खतरा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने वजारत आबी वसाइल के तहत एक खुसूसी वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत करते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर काबिल अमल और ठोस सिफारिशात मुरतब करके प्लानिंग कमीशन को पेश की जाएं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। वफाकी हुकूमत मुज़र सेहत दरख्त अदालती हुक्म पर हटा रही है और ये अमल मुकम्मल साइंसी सर्वे के बाद किया गया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 29,015 दरख्त काट कर 40,000 दरख्त लगाए गए। 30 मार्च तक इन्हीं जगहों पर मजीद 60,000 दरख्त लगाएंगे। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। बाकी दरख्त जो है, क्योंकि कई इकसाम की शजरकारी जो है वो उसका मौसम अगले 1-1.5 महीने बाद है। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वो कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। तफसील शेयर कर रहे हैं सैयद जहांगीर अली।
जिना पोस्ट मेडिकल कॉलेज के 7वें सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लोगों की जान बचाना डॉक्टर्स का बुनियादी फर्ज है। शोबे तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीमेडिसिन से भी इलाज मुमकिन हो रहा है। When medicine is being reshaped by technology, artificial intelligence, telemedicine and data-driven care. But let us remember, technology without ethics is dangerous. Knowledge without empathy is hollow. Pakistan needs doctors who are not only competent but conscious, not only intelligent but ethical, not only ambitious but accountable. The future of healthcare must be patient-centered, inclusive and just. बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि सेहत के शोबे में शुरू किए गए मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध वो वाहिद सूबा है जो महंगे से महंगा इलाज मुफ्त फराम कर रहा है, जबकि सूबे के अस्पतालों में पाकिस्तान भर से लोग इलाज कराने आते हैं। तकरीब से सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद सिराज मेमन ने भी खिताब किया और इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने फारिग तहसील तुलबा तालबात में गोल्ड मेडल और असनाद तकसीम की। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाज़रीन। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रहने का इम्कान है। खित्ताए पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही। आज कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। लेह -12, स्कर्दू -10, गोपिस -9, अस्तोर -8, गिलगित -7, बगरोट, हुंजा -6 और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी स्क्रीन पर। और इस्लामाबाद 1, लाहौर 2, कराची 9, पेशावर 1, कोयटा -1 डिग्री, मुल्तान 1, गिलगित -7, स्कर्दू -10, मुजफ्फराबाद 0, श्रीनगर 5 और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा जाफ़री शमसुद्दीन की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। एयर चीफ ने वफ़द को PAF को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की मुहिम के बारे में बताया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, जदीद तरबियत और मल्टी डोमेन ऑप्शंस की तैयारी को बढ़ाने के लिए मखसूस सलाहियतों को शामिल करना शामिल है। इंडोनेशिया की वज़ीर दिफ़ा ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तहत PAF की पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों की तारीफ़ की और तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस डोमेन में ताउन बढ़ाने में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। पैगाम अमन कमेटी की कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कायम कौमी पैगाम अमन कमेटी ने GHQ में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात की, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानी के ख़िलाफ़ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। NPAC ने फितनतुल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कि मुलाकात में फितनुल ख़वारिज, कलअदम TTP और TTA के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई।
NPAC ने منبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان کیا۔ ملاقات میں نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ DGI SPR نے کہا کہ دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ ریاستی بیانیے کی ترویج کے لیے مساجد، مدارس اور جامعات میں آگاہی اور رہنمائی نشستیں بڑھانے کی تجویز ہے۔ ملاقات کو غیر معمولی مفید قرار دیتے ہوئے اعتماد اور عملی تعاون کے نئے راستوں پر پیش رفت کی توقع ظاہر کی گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کراچی کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھرپور مہمان نوازی کی گئی، تاہم PTI کے کارکنان نے میڈیا ورکرز پر حملہ کر کے اپنی ہی فسادی تاریخ کو دہرایا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں عائشہ آفرین سے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ PTI کو جلسے کا اجازت نامہ ملنے کے 5 منٹ کے اندر PTI رہنماؤں کا بیان آیا کہ وہ باغ جناح میں جلسہ نہیں کریں گے بلکہ سڑک پر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بھی 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کی خطرناک کوشش کی گئی۔ جب آپ کے لیے ایک روٹ کھولا گیا جس میں آپ کو اور آپ کی پبلک کو آنا ہے تو آپ نے وہی روٹ اختیار کرنا تھا۔ آپ گھوم پھر کے اپنی مرضی سے پھر آپ نے وہ کر کی، آپ نے پھر وہی نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کی کوشش کی، آپ نے پھر اس طریقے سے مخالفوں کو، جس طریقے سے سیاسی مخالفوں کو ایک ادب کے دائرے میں بات کی جاتی ہے، آپ نے پھر جو ہے بلو دا بیلٹ آپ نے وہ گفتگو کی۔ یہ کہیں سے بھی قابل قبول نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ PTI کے کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، صحافیوں اور خاتون صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے، جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں اس کے شیشے توڑے گئے، صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا، خواتین صحافیوں کو آپ نے نشانہ بنایا جو کہ PTI کی ایک پرانی روایت رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ PTI کے اس رویے پر سندھ حکومت نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت مانگنا مضحکہ خیز ہے۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جو پاکستان اور اس کے آئین کو نہیں مانتے ان سے کیا مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ PTI انتشاری سیاست ترک کر کے تعمیری سیاست کرے۔ ہمارے CM صاحب اپنی ریاست سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان کے خلاف ثبوت دیں کہ افغانستان ہمارے صوبے میں کیسے ملوث ہے دہشت گردی میں۔ اگر آپ ڈی خان کا ایونٹ لے لیں، پولیس ٹریننگ اسکول کا، آپ وزیرستان کے کیڈٹ کالج کا لے لیں، آپ FC ہیڈ کوارٹر جو مین پشاور میں ہوا ہے، یا آف جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں افغان شہری ملوث ہوتے ہیں اور ساتھ میں پاکستان سے جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ نہیں پتہ کہ میرے صوبے میں یہ کارروائیاں کون کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان نہیں کر رہا فار ایگزامپل تو کون کر رہے ہیں؟ یہ ثبوت کئی دفعہ سے اور انٹرنیشنلی ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت نے مختلف فورمز پہ بتایا ہے افغانستان کو کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے پاکستان کے خلاف۔ پھر ہمارے دوست ملک بیٹھے، ہم نے ترکیہ میں اور قطر میں پھر بات چیت کی اور پھر ہم نے ثبوت پیش کیے اور وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قانون سازی، پارلیمان کے کردار کو مضبوط بنانے اور دونوں ایوانوں کے مابین تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ نے اسپیکر کی جانب سے تمام جماعتوں کے اراکین کے لیے یکساں پالیسی اپنانے کو سراہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ملک کے قانون ساز اداروں کے مابین روابط اور باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بلوچستان کے گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران بلوچستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بلوچستان میں خواتین اور نوجوانوں کے حقوق کے تحفظ اور سماجی ترقی کی اہمیت پر خصوصی زور دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے منصوبوں کا فوری اور مؤثر نفاذ وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ گورنر بلوچستان نے صوبے میں امن و امان کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔
मुलाकात में वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया और तंजीम अमन सकाफत की चेयरपर्सन मशाल मलिक ने यासीन मलिक की रिहाई से मुतालिक अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में रावलपिंडी के इलाके टेंच भाटा का दौरा किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारतीय काबिज हुक्काम यासीन मलिक को डेथ सेल में रखकर शदीद ज़हनी अजियत दे रहे हैं। टेंच भाटा का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो यहाँ पे रहे, उनकी रिहाइश यहाँ पे थी। हमारे हुर्रियत रहनुमाओं को कत्ल किया जा रहा है और खास तौर पे यासीन साहब बदतरीन उनको मारा पीटा जा रहा है। ये बकायदा एक इनकलाब है, ये एक तारीख है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे साथ ताकत अल्लाह ताला के बाद उन लाखों शोहदा की कुर्बानियों की ताकत है, वो है हमारी आर्मी और उसके साथ साथ आप लोग हैं। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी और पूंछ अजला के अलावा कंट्रोल लाइन के साथ इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयाँ की। बड़ी तादाद में काबिज फौजियों की तैनाती, मुहासरे, तलाशी की कार्रवाइयों और रात के वक्त फोर्सेस के गश्त से मकामी अफराद में शदीद खौफ और दहशत पैदा हो गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद 3000 से ज़ायद कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की हालत इज़हार का फौरी नोटिस ले। हुर्रियत तर्जुमान ने मसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और सैयद आसिया इंदिराबी समेत हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। उधर काबिज इंतजामिया ने मकबूजा इलाके में मसाजिद और इमाम साहिबान का डाटा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद उलमा इकराम और शहरियों पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करना है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर में एक बयान में मसाजिद और इमाम साहिबान की प्रोफाइलिंग पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए काबिज हुकाम पर मुहिम फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया है। भारतीय काबिज इंतजामिया ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मजीद 5 कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से सैकड़ों कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ये हुक्म हतमी है और इसका इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। उन्होंने कहा कि वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। और अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की भी हिदायत जारी कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा है कि ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशें खाक में मिलाकर एक तारीख रकम कर दी है। सरकारी टीवी पर खिताब में सुप्रीम लीडर ने हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन पेश किया। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने कहा कि अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़्म और अपनी शनाख्त का भरपूर इजहार किया। ईरानी कौम बाखबर है और दुश्मन को बखूबी पहचानती है। तेहरान में ईरानी हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती और हरियाली बहाल करने के लिए हुकूमत ने ग्रीन इस्लामाबाद मुहिम तेज़ कर दी है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। देखते हैं सईद वज़ीर की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में उन मकामात का मुआयना किया जहाँ तरक्याती मनसूबों के दौरान दरख्त काटे गए थे और बताया कि इनकी जगह बड़ी तादाद में नए और सायादार दरख्त लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके की मैपिंग की गई, पेपर मलबरी समेत दरख्तों की शनाख्त के बाद कटाई की गई, जबकि मकामी दरख्तों को बचाया भी गया है। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही वहाँ भी जाएंगे और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप दरख्त उखाड़ेंगे तो कोशिश करेंगे उसको प्लांट करने की, यानी उसको काटेंगे नहीं, उसको उखाड़ के किसी और जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे अगर वो वायबल हो। 3399 यानी 3400 एकड़ शक्करपड़ियाँ में ये जंगलात हैं, ये इनका इलाका है जिसमें 27 एकड़ के ऊपर ये कटाई हुई है। मारगला का ये हिस्सा है जिसमें तकरीबन 1001 जो मुकामी दरख्त थे, जो स्टेटमेंट मुझे दी गई है, वो बचाए गए हैं।
تو میں یہ دیکھ رہا ہوں, گن تو نہیں رہا, گننے چاہیے, مگر میں چاہوں گا کہ ای پی اے اس کے بعد ان کو کنفرم کرے اور ان کو گنے بھی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے اس بات پر زور دیا کہ مقامی درخت لگانا ضروری ہے کیونکہ غیر مقامی درختوں سے پرندے اور دیگر جاندار متاثر ہوتے ہیں. لگائے گئے پودوں کی حفاظت کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں, جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں. اس اقدام کا مقصد نہ صرف شہر کو سرسبز اور ماحول دوست بنانا ہے بلکہ وفاقی دارالحکومت کو حقیقی معنی میں ایک سبز شہر کا خواب بھی حقیقت بنانا ہے. سعید وزیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ سیکٹر G7 حادثے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا. جہاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ متاثرین کو متبادل گھر دیے جائیں گے. ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ان کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے متبادل گھر اور جو گھر قابل مرمت ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہماری ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم CDA ان گھروں کو از سر نو تعمیر کرے گا. باقی جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا. ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہو سکے جو انسانی طور پہ اس نقصان کا ازالہ ممکن ہے وہ ہم کریں گے. باقی تو اتنا بڑا یہ حادثہ ہے کہ اس میں جو تسلی کے الفاظ ہیں وہ بھی ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سلنڈر حادثے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ نہایت افسوسناک ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے ہدایت کی ہے کہ سیف سٹیز منصوبے پر کام تیز کیا جائے اور اسے مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق مکمل کیا جائے. پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے انہوں نے مزید ہدایت کی کہ سیف سٹی منصوبے کی ضم اضلاع تک توسیع کے لیے ہوم ورک جلد مکمل کیا جائے. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیف سٹیز منصوبے کے تحت پشاور میں 133 مقامات پر 711 جدید کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں, جبکہ ڈی آئی خان میں 88, بنو 76 اور لکی مروت میں 47 مقامات پر بھی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. اور پی آئی اے کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ ایک تاریخی اشتراک. پی آئی اے کی جانب سے ایک ہی ٹکٹ پر فضائی اور ٹرین کے سفر کی سہولت فراہم کر دی گئی. ترجمان کے مطابق پی آئی اے کی پروازوں سے ٹورنٹو پہنچنے والے مسافر وہاں کی پارٹنر ایکسس ریل سروس کے ذریعے کینیڈا کے 8 اہم شہروں تک اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے. پی آئی اے سے برطانیہ کے شہروں مانچسٹر اور لندن کے لیے سفر کرنے والے مسافر ایکسس ریل سروس کے ذریعے 50 سے زائد شہروں تک رسائی حاصل کر سکیں گے. پی آئی اے کے مسافر اپنی منزل مقصود تک ٹکٹ پی آئی اے کے تمام بکنگ دفاتر اور رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹکٹ کی بکنگ پی آئی اے کی ویب سائٹ اور موبائل اپلیکیشن سے بھی کی جا سکتی ہے. اس سہولت سے مسافروں کی وقت کی بچت ہوگی. بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے کے زیر اہتمام ایک تاریخی جاب فیئر کا انعقاد ہوا, جس کا مقصد چین میں مقیم پاکستانی ہنرمندوں کو چینی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست جوڑنا ہے. تقریب میں تقریباً 2000 افراد نے براہ راست اور ورچوئل شرکت کی. جاب فیئر میں چین کے سرکاری اور نجی شعبے کے بڑے اداروں نے شرکت کی جو پاکستان میں توانائی, بنیادی ڈھانچے اور انجینئرنگ کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے اس موقع پر کہا کہ چین سے تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی نہ صرف تکنیکی طور پر ماہر ہیں بلکہ وہ چینی زبان اور ثقافت سے بھی واقف ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کو کامیاب بنانا اور مقامی ہنرمندوں کو روزگار فراہم کرنا ہے. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کے موقف پر ڈٹ گیا. بی سی بی اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے درمیان معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان ویڈیو کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بنگلہ دیش ایک بار پھر اپنے میچز بھارت سے منتقل کرنے کے موقف پر ڈٹا رہا. آئی سی سی نے بی سی بی سے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ ٹورنامنٹ کا شیڈیول پہلے ہی طے ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا
کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنی ٹیم بھارت نہیں بھیج سکتے. ہمارے میچز بھارت سے باہر منتقل کیے جائیں. دونوں فریقین نے ممکنہ حل کی تلاش کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ کے بعد بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو بھارتی بورڈ نے IPL سے ریلیز کرنے کا حکم دیا تھا. اسی تناظر میں دھمکیوں کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے. بھارت ایک مرتبہ پھر کھیلوں میں سیاست گھسیٹ لایا. پاکستانی مسِ منظر کی وجہ سے امریکہ کی نمائندگی کرنے والے کرکٹرز کا T20 ورلڈ کپ کے لیے ویزا مسترد کر دیا. امریکہ کے فاسٹ بولر علی خان نے ویزا مسترد ہونے کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے امریکہ کی نمائندگی کرنے والے 4 کرکٹرز کا ویزا مسترد کیا. رپورٹس کے مطابق پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑی شایان جہانگیر، احسان عادل اور محمد محسن کو بھی اسی نوعیت کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا، جبکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بھی اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر چکا ہے. آسٹریلیا کی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان الیسا ہیلی نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. الیسا ہیلی بھارت کے خلاف سیریز کے بعد تمام فارمیٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی. آسٹریلین فاسٹ بولر مچل سٹارک کی اہلیہ الیسا ہیلی آسٹریلیا کی جانب سے T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والی دوسری خاتون کھلاڑی ہیں. 35 سالہ الیسا ہیلی نے 2010 میں کیریئر کا آغاز کیا. انہوں نے 295 انٹرنیشنل میچز میں 7000 سے زائد رنز بنائے اور وکٹوں کے پیچھے 275 آؤٹ کیے. وہ 8 ICC ورلڈ کپ ٹائٹلز کا حصہ رہی. انہوں نے اپنے طویل اور شاندار کیریئر میں وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر ٹیم کو کئی تاریخی کامیابیاں دلوائی اور عالمی سطح پر آسٹریلوی کرکٹ کا نام بھی روشن کیا. بگ بیش کرکٹ لیگ میں میلبرن سٹارز نے ایڈلیڈ اسٹرائکرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. میلبرن میں کھیلے گئے میچ میں ایڈلیڈ اسٹرائکرز کی ٹیم نے 19.3 اوورز میں 83 رنز بنائے اور وہ آؤٹ ہو گئی. صرف 2 بلے باز ڈبل فگرز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. لیام اسکاٹ نے 18 اور کیمرن بوئس نے 20 رن سکور کیے. میلبرن سٹارز کے ٹام کرن نے 4 وکٹیں حاصل کی. میچل سویپسن نے 3، مارکس سٹونس نے 2 اور پیٹر سڈل نے 1 وکٹ اپنے نام کی. میلبرن سٹارز نے 84 رنز کا آسان ہدف 15.1 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. تھامس راجرز 32 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ مارکس سٹوئس 22 رنز بنانے کے ریکارڈ ہرٹ ہوئے. ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے لیام اسکاٹ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بگ بیش لیگ کے مقابلے PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. Gets a bit of width to work with. Does strike at 144 with a leg. That will do it. 4 runs to finish it. پاکستان کی پہلی خاتون MMA فائٹر انیتا کریم نے بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر دیا. ہنزا سے تعلق رکھنے والی انیتا نے انفینٹ چیمپئن شپ کی 52 کلو گرام کیٹیگری کا ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کی. انیتا نے چیمپئن شپ کے فائنل میں ایرانی فائٹر پریسا شمس آبادی کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا. انیتا کریم اس سے قبل بھی بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں. ان کی یہ فتح نہ صرف پاکستان کے لیے اعزاز ہے بلکہ نوجوان لڑکیوں میں خود اعتمادی اور خواتین کو بااختیار بنانے کا باعث بھی بنے گی. انیتا کی کامیابی نوجوانوں کو مکس مارشل آرٹس کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. نفرت کو مٹا کر الفت سے ہر دل کو ہم سرشار کریں. خبرنامہ مکمل ہوا. زبیر احمد صدیقی اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے. کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. درست ہر وقت بر وقت